Saturday, that is the November, we are going to have a walkathon, and we are going to bring all the children. Nearly we are expecting 20 to 25,000 children gathering at Tandel Exhibition Ground near Karave, just to Palm Beach Road. We are going to have a massive walkathon. I think, sir, our impact will be till Delhi about this walkathon. We are expecting 25,000 students. All the principals are requested to cooperate with us such that they send their students for this city. And we are going to walk over the city by nearly 2.5 to 3 kilometers. The Limca Book of Record says that 2.5 kilometers walkathon was organized by one of the schools in Chennai, and the total number of students participated was 12,000. We are definitely going to cross over it, and we are going to see that Navi Mumbai enters into the Limca Book of Record as far as walkathon is concerned. I hope so. All HMs will cooperate with us. One more thing is, we are going to have a thinking group of HMs. Sir, smart city, smart education. For smart education, we are going to nominate some principals of the school. Sir, we have IB schools here, we have CBSE, we have State Board, we have ICSE, and we are going to bring a thinker's pad. We want smart education to be delivered. Government is trying that we should reduce the baggage of the student. We will challenge the principals that we are going to select the first school which is going to reduce the baggage, and that school will be nominated at corporation level. I request you to encourage your management to work on this issue, how to reduce the baggage of the student, and if you can make zero baggage, nothing like it. I was talking to some 2-3 principals at my level, and they said it is possible, sir. You can make the school with total Wi-Fi, exclude blocking Facebook and YouTube, and the total school can be on Wi-Fi. There are different ideas which can be brought over. So we are making a thinker group for smart education. As the city becomes smart, our education standard will definitely become smart. And we know there are a lot of schools which are ready to contribute towards this. Before Honorable Mayor takes it over, I will request the SBO principal man to honor our commissioner and mayor. Can we give a big applause? We request Madam to honor our city engineer. We have already given you some forms, and those forms have to be filled in, and you can directly log on or hand over the forms to us. I will request all the principals to have their respective teachers meeting on 28th, that is tomorrow, whichever time is feasible for you. I want that you should submit that minutes of the meeting to me, of the teachers meeting which you take regarding smart city. Hand over those forms to them also, that they can also fill the forms, and then the forms which will be given to the parents. You can please hand over to the student. After Mayor, Honorable Mayor delivers his word, we will request the principals who want to bring their ideas. We can definitely bring it out today. Many people may not be able to get the chance, but whoever gets the chance, they are most welcome. I will request Honorable Mayor Sudhakar Sonavane ji to speak few words. नवी मुंबई के सभी स्मार्ट स्कूलों के स्मार्ट प्रिंसिपल को यहाँ पर बुलाकर कैसे होगा हमारा शहर स्मार्ट, इसके बारे में हमारे शहर अभियंता श्री मोहन नगौकर जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और हमारे कमिश्नर जी ने आपको इसमें कैसे आप हिस्सा ले सकते हो, यानी कि आपकी जो सजेशंस है, आपके जो सुझाव है, ये आप किस प्रकार दे सकते हो और किस प्रकार देना चाहिए, ये अपील किया है। वैसे हमारे एजुकेशन के डिप्टी कमिश्नर पटनीगिरी जी ने यहाँ पर
तमिलनाडु ने भले वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हो, लेकिन रिकॉर्ड अपना कोई नहीं तोड़ सकता है। आपने यहाँ पर अलाउंस किया तो निश्चित रूप से मुझे मालूम है 25,000 नहीं 50,000 बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबकी मानसिकता को वहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक साथ जुड़ते हैं तब एकता का दर्शन होना चाहिए। जब एक साथ जुड़ने के बाद में हाथ से हाथ जब मिलाएंगे तब ये CBSE, ICIC, ये स्टेट बोर्ड, कॉरपोरेशन, ये सब अगर आएगा तो शायद ये हो नहीं पाएगा। इसलिए पहले आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम रास्ते पे आएंगे, आपको इतना सारा बताने के बाद जब आपके पास फॉर्म दिए जाएंगे तो उस फॉर्म को फिलअप करके और जो बच्चे हैं आपके पास उनसे फिलअप करके यहाँ पर 5 तारीख के पहले हमको ये देना है। और ये इसलिए देना है क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है कि हमारा शहर, जिस शहर में हम रहेंगे, जिस शहर को हम सपने में देख रहे हैं, यानी कि सपनों का शहर, इस सपनों के शहर में क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले हम सोचते थे, हम करते थे, उसके बाद में अगर आपको पसंद नहीं है तो आप घर देख के निकल जा सकते थे, और जिसको पसंद है वो यहाँ आता था। ये चलते रहता था, ये आने और जाने का काम। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो आपको पूछकर, आपका सजेशन लेकर, यहाँ जो भी चेंजेस आएंगे या तो जितने भी मतलब बदलाव हम करना चाहते हैं वो बदलाव आप सबको वहाँ पर ध्यान में रख के, आपके सजेशन को ध्यान में रख के वो करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ इस शहर का मेयर होने के नाते कि आप सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। ये शहर वैसे भी स्मार्ट है। इस शहर को बनाने के समय जो कुछ भी कमियां यहाँ पर रही थी उस कमियों को पूरा करने का काम आज आपके इस सजेशन से यहाँ पर होगा। स्मार्ट सिटी ये हमारे राज्य के 10 शहरों में हमारे शहर का नाम है, लेकिन हमारे पूरे राज्य में ये एक में ऐसा शहर है कि जो स्वच्छता के बारे में एक पहले नंबर पे माना जाता है और देश में तीसरे नंबर पर ये शहर है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी और भी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्वच्छता के बारे में हम निश्चित रूप से आगे हैं, लेकिन ये सब करने के समय जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। तो ये भीड़ भाड़ फ्यूचर में, भविष्य में हमारे पास किस प्रकार आ सकती है उस पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आप उनसे बात करते हो, वो कहाँ रहते हैं। कई स्कूलें तो ऐसी है, CBSE, ICIC बोर्ड के स्कूलें ऐसी है कि जो इस शहर के बाहर के बच्चों को पढ़ाती है, और बाहर के बच्चों को पढ़ा के जहाँ पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का मुद्दा हरदम उपस्थित होता है कि जहाँ आपकी स्कूल होती है, स्कूल के बाहर इतनी सारी बसें लगी होती है और बाद में पता चलता है कि ये बस शहर के बाहर चली गई। हजारों बच्चे शहर के बाहर से जब यहाँ आते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा अगर ये शहर है, हमारा शहर अगर ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंजेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर ये सब हम चाहते हैं तो हमको ये राइट टू एजुकेशन है, इसको भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि हमारे देश में ये जो कुछ भी यानी कानून में हम परिवर्तन करते हैं, जो कानून में परिवर्तन करने के बाद में उसको लागू करने की बात होती है, तब जाके हमारे इस शहर में, हमारे देश में ऐसे 2 वर्ग तैयार हो जाते हैं कि अरे नहीं, ये तो हमारे लिए लागू नहीं होता है। यानी कि पहले से ही इसमें कुछ किंतु परंतु रह जाते हैं। इसलिए आप स्मार्ट सिटी के सजेशन में ये किंतु परंतु मत यहाँ पर लाना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी कानून बनाती है उसको हम कितना फॉलो करते हैं वो बात अलग है, लेकिन इस शहर को भविष्य में आपके रहने योग्य, यानी कि आपके नौकरी करने योग्य तो है ही है शहर, नौकरी तो आप यहाँ करते हैं, लेकिन रहने योग्य आसपास का कोई शहर नहीं है। जो शहर यही है, ये शहर भविष्य में आपको रहने योग्य रहना चाहिए, इसमें इसी प्रकार बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मैं आपको आज अपील करूंगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपको कौन सी भाषा समझती है, यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया राष्ट्रभाषा में। मैं मराठी में भी बोलने जाने वाला था, लेकिन मुझे पता चला 1-2 मैडम ने यहाँ पर कहा नहीं इंग्लिश चाहिए, लेकिन पीछे के बहुत से लोग नाराज थे कि इंग्लिश बोलने के बाद में, क्योंकि उनको वहाँ पर इंग्लिश समझती नहीं थी।
जैसे मुझे भी नहीं समझती थी, क्या बोला मालूम नहीं पड़ा मुझे। ये अच्छा नहीं लगा ना। लेकिन ऐसा है कि बात ऐसी होनी चाहिए कि जो निश्चित रूप से सबके समझ में आए। यहाँ पर 2 सत्र में हम लोगों को इस प्रकार की चर्चा का आयोजन करना चाहिए। एक चर्चा निश्चित रूप से पट्टीगिरी साहब भविष्य में आप जब करोगे तब करने के बाद एक सेशन मराठी में हो, एक हिंदी में हो और एक पूरी तरह अंग्रेजी में हो, यानी इंग्लिश में हो। तो तालियां बजी, इसका मतलब उनका सपोर्ट है मुझे इस बात पे। तो नहीं, मैं इसलिए कहता हूं कि हमने इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है, क्योंकि स्कूल मेरा एक बहुत ही क्या कहते हैं कि फेवरेट ऐसा एक सब्जेक्ट है। मैंने बहुत R&D वहाँ पर की है। कारपोरेशन की स्कूल है, वो कारपोरेशन के स्कूल में हमने वहाँ पर, क्योंकि कारपोरेशन की स्कूल तो खैराती स्कूल होती है, सब कुछ मुफ्त में मिलता है, यानी कि हर भाषा का, हर प्रांत का बच्चा वही स्कूल में जाता है। वो यहाँ पर आपके स्कूल में नहीं आ सकता है, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक जो होता है वो एक ही भाषा का होता है। वो मराठी भाषा में वहाँ पर पढ़ाता है। बच्चे वहाँ पर 60% से अधिक बहुभाषिक होते हैं। कोई कर्नाटक के होते, कोई उत्तर प्रदेश के होते, कोई हरियाणा के होते, कोई पंजाब के होते। ये सब बच्चे सिर्फ गरीब है, इसलिए वो कारपोरेशन के स्कूल में जाते हैं। जब हमने देखा कि ये बच्चे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, तब पता चला कि ये बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी कि वो बच्चे जो मास्टर पढ़ा रहा है बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा है, लेकिन वो बच्चों को समझ नहीं रहा है। और हम जाके पूछते, भाई खड़े हो जाओ, आपका नाम क्या है? हमने क्या सवाल किया उसको समझा ही नहीं। वो हमारे लिए क्या था? हेयर डिसिबल था, हमारे लिए कर्णबधिर था। ये कर्णबधिर स्कूल हमने हमारे यहाँ से शुरू की, तब पता चला कि ये बच्चों को सुनाई नहीं देता, इसलिए मास्टर की भाषा समझती नहीं है, उसको मशीन लगानी पड़ती है। तब जाके हमने उसमें जो चेंज, कमिश्नर साहब में ये इसके बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बात एक है कि हमने जब उसकी शुरुआत की, हमने 200 पेजेस का एक रिपोर्ट बनाया और सबमिट किया कारपोरेशन को। कारपोरेशन ने उठाया और बाजू में रख दिया। अरे ये तो होते रहता है, जाने तो क्या है, ये तो गरीब तबके के लोग हैं, इनको पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, इनकी इस देश को जरूरत है, नहीं है, ये सब बातें उसमें आती है। लेकिन हमने वो बात को नहीं छोड़ा, हम आगे लेके गए। हम आगे लेके जाने के बाद में हर क्लास में हमने CCTV लगाया। उसके बाद में हमने इसका फुटेज लिया और तब जाके प्रेजेंटेशन दिया, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलता है, यहाँ पर लगाकर सामने दिया। कितना अच्छा लगता है, यानी कि सब चीज को समेट के हम आपके सामने पिक्चर के यहाँ पर रखते हैं। तब जाके उनको पता चला कि ये बराबर है। हमने कहा कि ये जो बच्चे हैं, यहाँ पर मास्टर तो पढ़ा रहा है, लेकिन ये बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं, ये बच्चे आजू बाजू में थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। तब हमने उन बच्चों को बुलाया कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको भाषा ही नहीं समझती, वो सिर्फ गरीब है, इसके लिए कारपोरेशन के स्कूल में था। तब जाके हमने एक स्कूल के बच्चों को सेग्रीगेट किया, जैसे कि हम कई दिनों से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वेट एंड ड्राई गार्बेज को सेग्रीगेट करने की, हम नहीं कर पा रहे। हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमें उसके बारे में पूरा पता चलना चाहिए। जब हमने वो सेग्रीगेट किया, तब आज मैं आपको बताता हूं कि मराठी में मेरे पास 3000 बच्चे हैं और हिंदी में कितने हैं? 2000 बच्चे। यानी कि 3000 और 2000 बच्चे अगर एक साथ मिल जाती है तो क्या मास्टर उसको पढ़ा पाता? ये है, और उसको समझ में नहीं आता, यानी कि 2000 बच्चे तो वैसे ही मतलब लगाए रहता था। इसके लिए यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे मालूम नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश समझती नहीं, इसका मतलब आपको हिंदी में या मराठी में बोलना चाहिए। लेकिन जिसको जो भाषा समझती है, उस भाषा में हम अगर अपील करेंगे तो उनका जो भी समर्थन है वो भारी मात्रा में मिलेगा हमको। इसलिए भविष्य में आप जितने मुख्याध्यापक होंगे और जितने भी शिक्षक होंगे, उनको अगर हमारे साथ में वो सहयोगी बनाना है तो उनको उनकी भाषा में, या तो हिंदी में, या तो मराठी में, या तो इंग्लिश में, ये तीनों भाषा में हमको उसमें, क्योंकि ये समय कम है,
दगावकर साहब, ये समय कम है लेकिन समय आपको बढ़ाना होगा। इस प्रकार हमको लोगों तक जाना होगा, लोगों से अपील करनी होगी। जिसको अगर समझ में ही नहीं आएगा बोलेगा स्मार्ट सिटी मेरे लिए है ही नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी आप सबके लिए है। स्मार्ट सिटी में आप सबको सहयोग देना है। स्मार्ट सिटी में आपका सहयोग सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है, क्योंकि ये आपके बगैर स्मार्ट नहीं बन सकता है। जिस प्रकार हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जिस प्रकार हम घन कचरा की बात करते हैं, जिस प्रकार हम स्ट्रॉ वाटर की बात करते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ पर सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आपसे संबंधित है। और जब तक आप इसमें हाथ नहीं बटाओगे तब तक हम स्मार्ट नहीं बन सकते। भले हम यहाँ पर कागज में स्मार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज कागज में हमारे इतना ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कागज को मैच करना ये महाराष्ट्र में सैकड़ों शहरों को ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम को हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। जैसे कि हमारा यहाँ पर घन कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, इसका डिस्पोजल जो है बहुत अच्छा, आपने जाके देखा होगा कि प्लेग्राउंड की तरह दिखता है वो। हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। जैसे कि कमिश्नर साहब ने कहा कि उसको काढ़ा लगाया हुआ है, पता चलता है कि कहाँ कितना पानी जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ मोरबे डैम है, हम लोग यहाँ पर अपारंपरिक ऊर्जा का निर्माण भी यहाँ पर करने जा रहे हैं कि जो हमारा डैम है वो पानी तो देगा, लेकिन पानी के साथ साथ बिजली भी देगा। यानी कि इस प्रकार का स्मार्ट प्रोग्राम निश्चित रूप से हमारे शहर में पहले से ही चल रहा है, लेकिन आपके सुझाव से और उसको तेजी मिल सकती है और उसको गति मिल सकती है। इसलिए आपको इसमें सहयोग देने का मैं अपील करता हूँ। और आपको पूछे बगैर मैंने हिंदी में अपना भाषण शुरू किया। अगर किसी को समझा नहीं होगा तो निश्चित रूप से पटनीगिरी साहब आप उनको बता देना कि मैंने क्या कहा था। धन्यवाद। माननीय महापौर साहब ने तो राष्ट्रीय भाषा में अपने मतों को मार्क दिया है। मुझे लगता है कि सबको राष्ट्रभाषा आती है, मैं क्या इसका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं करूँगा। लेकिन माननीय महापौर साहब के जो विचार है उस विचार से मुझे लगता है हम सब लोग सहमत हैं। शहर को साथ में ले चलना है और इसीलिए हम महापौर साहब को कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपके विचारों को जरूर अमल करेगा और आपके साथ ही हम आपके सहयोग से इस सिटी को स्मार्ट कैसे बनाएं उसके विचार पेश करेंगे। नाउ वी रिक्वेस्ट ऑल दी HMs to give their valuable suggestions regarding the smart city. It might not be from only education sector, as the city engineer has pointed out a lot of sectors, but I request you that you should be very, very precise. Don't talk on the chair, honorable commissioner, honorable mayor. We don't require all this. You just stand there and we are going to set the mic to you. Everything is getting recorded so that you can talk about what you expect from us to create a smart city. That is only your valuable ideas. Your forms are already with you. You can fill it afterwards. You can give to us afterwards. But I request maximum of people to participate. Everything is getting recorded and going to be filed with us. So please don't expect any reply from the dais, because we are not going to reply anything. You are going to suggest. We are going to see how we can implement that. Okay. And now we are keeping the forum open. As soon as if somebody finishes, we request the next person to raise their hand. The mic will come to them. Sir, forum open karo. Anybody? Good afternoon all.